Assalamu alaikum everyone. I am Mohammad Awais and I am the General Secretary of Sindh Educational Organization. First of all, I warmly welcome you all here in today's online session hosted by Sindh Educational Organization. As you all know, SEO brings different sessions, whether it's related to educational awareness or any awareness related to any general topic or any health related awareness. So in the same way, we have organized a very important session, and that session is all about women's future in LLB. And in today's session, we have a guest speaker, Miss Maliha Palejo. She is having his LLB at one of the finest institute of Pakistan called Danning Law School, Karachi. So without having any further delay, we'll be heading to our guest speaker for the further proceedings of the session. So over to you, Miss Maliha. Assalamu alaikum everyone. I am the speaker for today. I am Maliha Palejo and currently enrolled in LLB in second year from Danning Law School. I feel really honored to be speaking about women's future in LLB and women's scope in Pakistan all over. It has been my dream since my childhood to become a lawyer, and the person who inspired me is my grandfather. My grandfather was a very celebrated and renowned lawyer of his time. He was really hardworking. So when I used to spend time with him when I was a child, it really inspired me to, pursue law. In my opinion, women must study law. In our country, women are stereotyped that they should do MBBS or they should marry to a guy that their family chooses and have kids and settle down and make a family. But in my opinion, women must be empowered, women must be independent and earn her own money. The law of the field of law can give us many benefits, like it can empower you, it can, open up many gateways. It is empowering in the sense that you can earn your own money, you can get power with this field, and you can get the ability to help others and help the poor who are not able to get justice, so you can help them out. जब मैंने अपना FSc कंप्लीट किया था तो मुझे यही था कि आई विल चूज लॉ, और फिर उसके बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मुझे लॉ ही करना है. तो जैसे मैंने FSc कंप्लीट किया, मैंने अपना रिजल्ट लिया, उसके बाद मैंने फौरन LAT की तैयारी करना शुरू कर दी थी. LAT की तैयारी बहुत इजी होती है अगर आप बेसिक इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज, PST, इस्लामियात और अपने ऐसे स्किल्स पर वर्क करो तो फिर LAT को पास करना बहुत इजी होता है. और LAT में टोटल 100 मार्क्स होते हैं जिसमें से आपको 50 मार्क्स लेने होते हैं, तो आपका सिलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट लॉ कॉलेज में हो जाता है. बट अगर बदकिस्मती से आपके 49 मार्क्स आते हैं तो फिर आप LAT में फेल हो जाते हो. वो कोई बुरी बात नहीं है. तो आपको अगर लॉ करना है तो आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी LAT टेस्ट के लिए, उसके बाद ही आप अपना लॉ कंटिन्यू कर सकते हैं. In this session, I'll be talking about different aspects related to the field of LLB and the legal field. So let's talk about the fact that the scope of LLB is really clear and versatile in Pakistan. It is the field of our great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So I feel honored to be studying LLB. The Higher Education Commission and the Bar Council encourages universities which are offering LLB programs in their universities. First of all, let's get to know what is LLB. LLB is a Latin word abbreviation which stands for Legum Baccalaureus. मुझे भी इस लफ्ज का एब्रिविएशन नहीं पता था जब तक मैंने LLB स्टार्ट नहीं किया था. अभी जाके मुझे इसका LLB का फुल एब्रिविएशन पता चला है कि ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है. और ये पाकिस्तान में एक 5 साल की डिग्री होती है, बट अगर आप UK या फिर इंटरनेशनल लॉ कर रहे हो तो वो 3 साल की हो जाती है आफ्टर योर A levels. अगर आपने A levels नहीं किया और आपको UK लॉ पढ़ना है या फिर इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है तो आपको 1 साल की फाउंडेशन डिप्लोमा करनी पड़ती है जिसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं.
पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज LLB प्रोग्राम करा रही हैं, जैसे कि सैबुल, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको अपने गोल तक पहुंचाने में हेल्प कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि LLB वाहिद एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी डिग्री है जो कि स्टूडेंट्स को या फिर ग्रेजुएट्स को जुडिशरी में काम करने का मौका देती है, उनको एम्पावर करती है। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और जो आसपास की सोसाइटी है उसके लिए भी, कि एक बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है या MBBS कर रहा है तो फिर वही ठीक है या फिर वही रिस्पेक्टेड है। उसके अलावा अगर हम लोग आर्ट्स चूज कर लें, लॉ चूज कर लें अपने विल पर, अपने पसंद के लिए, अपने दिल के लिए खुद चूज कर रहे हैं लॉ या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, तो क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये एक वैलिड फील्ड है, या क्या इसका स्कोप है, या फिर क्या इससे आप कमा पाएंगे, या फिर इसमें आपको इज्जत मिलेगी। तो बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगी। LLB इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फील्ड इन द वर्ल्ड। उसको कहा जाता है प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन UK, USA, इन मेनी कंट्रीज, इन यूरोप ऑल्सो। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी डिग्री है। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अपने बच्चों को MBBS से हटके, इंजीनियरिंग से हटके LLB करने का मौका दिया जाए, ताकि वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए खुशी से पढ़ें। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर LLB यू कैन go to any field of your choice, any specialization of your choice, and after graduation आप अटर्नी एट लॉ बन सकते हो, लॉ लेक्चरर बन सकते हो, जुडिशल मैजिस्ट्रेट बन सकते हो, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बन सकते हो। और अगर आपको लेक्चरर बनना है किसी भी पॉइंट पे ग्रेजुएशन के बाद, तो वो आपको आसानी से वो मिल जाता है, क्योंकि लेक्चररशिप इज ओपन फॉर ऑल। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स पर। पाकिस्तानी लॉ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ब्रिटिश लॉ से, क्योंकि हमारे जो लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं ना लीगल, वो सारी ब्रिटिश से इंस्पायर्ड हैं, इन्फ्लुएंस्ड है। तो जो हमारे पाकिस्तानी लॉ के सब्जेक्ट्स भी हैं वो भी इन्फ्लुएंस्ड है ब्रिटिश लॉ से, बट यकीन करें वो इतने इंटरेस्टिंग है, इतने ईजी है कि एक बार आप अगर उसको समझ के पढ़ना स्टार्ट करें तो फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई मुश्किल काम कर रहे हैं। इट्स रियली इजी वंस यू गेट टू नो इट। तो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लैंड लॉज, बैंकिंग लॉज, एक्सेट्रा। सैलरी की बात करते हैं। अब जब आप 5 साल दे रहे हैं एक डिग्री को, या फिर 3 साल दे रहे हैं LLB की डिग्री को, तो फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि डिग्री करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पर, नंबर 2 आपके एक्सपीरियंस पर, नंबर 3 आपकी स्पेशलाइजेशन पर, कि आपने किस एरिया में स्पेशलाइजेशन किया है। और एक मिनिमम सैलरी मैं आपको बता सकती हूँ एक गवर्नमेंट लॉयर की, जो कि बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद 80,000 होती है पर मंथ। उसके बाद मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन सुनने के बाद अगर कोई स्टूडेंट जो अभी FSC कर रहा है या फिर OA लेवल्स कर रहा है, अगर वो चाहता है कि वो फर्दर स्टडीज के लिए लॉ चूज करे, तो आई वुड से ये उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। अगर कोई लड़की अपने FSC के बाद LLB को चूज करना चाहती है, तो उसको सबसे पहले LAT क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको डे 1 से ही ये माइंड सेट करना है कि मुझे अगर LLB में एडमिशन लेना है तो मुझे अपनी इंग्लिश के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए LAT को क्लियर करने के लिए। और लॉ फील्ड में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट लैटिन टर्म्स होते हैं, बहुत सारी डिफिकल्ट इंग्लिश यूज की हुई होती है, क्योंकि वो पुराने जमाने से लिखा गया है एक सिलेबस पूरा हमारे लॉ का। और जो स्टैट्यूट्स हैं, जो लॉज हैं, जो सारे केस स्टडीज हैं, उसमें भी बहुत सारे मुश्किल टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो फिर आई वुड सजेस्ट कि इफ एनी वन ऑफ यू इज थिंकिंग टू do LLB, need to work on your English along with your general knowledge and अपनी राइटिंग स्किल्स को अभी से डेवलप करने की कोशिश करें, ऐसे राइटिंग को मेनली। The Constitution of Pakistan
states in the Article 25 that all citizens are equal before the law, and they are they are all equal, and there shall be no discrimination on the basis of sex. मतलब कि men and women are equal, भले एक लड़की हो, एक लड़का हो, या फिर एक ट्रांसजेंडर हो, अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी में इंडल्ज होंगे तो फिर उनको लॉ के सामने एक ही तरह से प्रेजेंट किया जाएगा. अगर एक लड़की पूरा घर संभाल सकती है अकेले, तो क्या वो एक जुडिशियल सिस्टम नहीं संभाल सकती? I would highlight the fact that Aisha Malik, who is a Pakistani judge, has been appointed as the first female judge of the Supreme Court in the history of Pakistan on 6th of January 2020. And she is the role model for all the women in the legal field and for me also. As a matter of fact, women need to hustle and gain experience to prove their worth. उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उनको एलएलबी करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एलएलबी के दौरान उनको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी ताकि उनको एक एक्सपीरियंस गेन हो. उनको अपने सीनियर्स के अंडर काम करना पड़ेगा ताकि वो ये कह सके कि यस, हमें ड्राफ्टिंग आती है, हमें बेल बनाने वाली एप्लीकेशन लिखना आती है. वो मतलब इतना ज्यादा अच्छा हो जाए अपनी फील्ड में कि वो ये कह सके कि यस, हम लोग एलएलबी करने के बाद ये प्रोफेशन में जाएंगे, कॉन्फिडेंटली बोल पाए. और वुमेन एलएलबी फील्ड में स्पेशली फैमिली लॉ के अंदर, ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, और बहुत ज्यादा केसेस में उनके पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं कि यस, उन्होंने इफेक्टिवली जस्टिस के लिए फाइट किया है. क्योंकि लिटिगेशन वाले फील्ड में मेरे ख्याल से पाकिस्तानी वुमेन इतना इंडल्ज नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक तो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है, दूसरे नंबर पर वर्कलोड वुमेन को ज्यादा दे दिया जाता है ताकि वो अपनी वर्थ को प्रूव कर सके, और नंबर थर्ड हरेसमेंट भी होती है वहां पर. तो मेरे ख्याल से वुमेन फैमिली लॉज को ज्यादा प्रेफर करती हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद या अपने काम करने की फील्ड में. अब लॉ फर्म्स की बात करते हैं कि लॉ फर्म्स में इनइक्वालिटी कैसे होती है. तो women in legal profession face challenges when it comes to obtaining all round experience. जब तक हम काम नहीं करेंगे एक फर्म में आकर अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तब तक हमें काम करना नहीं आएगा. तो हमारी एक बहुत ज्यादा रिनोन्ड लॉयर हैं जो कि अभी एक लॉ फर्म चला रही हैं, उनका नाम है इस्मत मेहदी. इस्मत मेहदी ने अपना एक्सपीरियंस से बताया है कि जब वो अपने वर्किंग डेज में थी, जब वो उन्होंने शुरू में एक लॉ फर्म को ज्वाइन किया था ऐसा फीमेल एसोसिएट, तो उनको ना डबल वर्कलोड दे दिया जाता था मेल्स के मुकाबले, ताकि वो अपनी वर्थ को प्रूव कर सके. तो उन्होंने वो सब किया, काफी इयर्स तक उन्होंने डबल वर्कलोड को हैंडल किया, और अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए उन्होंने आदमियों से ज्यादा डबल काम किया, वर्कलोड को हैंडल किया. तब जाके उनको आज एक रिकग्नाइजेशन मिलती है और वो आज एक लीगल फर्म चलाती हैं. जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान. पाकिस्तान रैंक्ड 141 out of 142 in the year 2014 gender gap index, maintaining second to last ranking. पाकिस्तान में वुमेन के लिए बहुत ज्यादा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं लीगल फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से वुमेन ज्यादातर तो इन हाउस लॉयर्स बन जाती हैं. और इस गैप की वजह से, इस इनइक्वालिटी की वजह से जो फर्म्स में हो रही है आज भी पाकिस्तान में, तो मेल एसोसिएट्स को ना इनसिक्योरिटी फील होती है कि वुमेन को एम्पावर क्यों किया जा रहा है, या फिर वुमेन एक हायर पोजीशन पे कैसे हैं, या फिर वुमेन इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेल एसोसिएट्स को इनसिक्योरिटी होता है इस चीज को लेकर. और हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो सोशल और कल्चरल लिमिटेशंस हैं, जो हमारी शुरू से एक स्टीरियोटाइप चलता आ रहा है कि लड़की है तो फिर एमबीबीएस करेगी, या फिर शादी करके बैठ जाएगी, या फिर उसको एक काम करना है तो फिर वो एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रह के करेगी, या फिर उसको जितना बोला जा रहा है वो उतना करेगी. तो फिर लड़के या फिर मेल जो सोसाइटी के हैं, जो डोमिनेटिंग हैं, तो वो ये चीज देख के डर जाते हैं कि लड़कियां अभी लीगल फील्ड में कैसे आ रही हैं. तो आई थिंक वो उनको बहुत ज्यादा डरा देता है.
आखिरी बात इस सेशन की और सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वर्क प्लेस पे जो हरेसमेंट होती है वुमेन के साथ वो बहुत ज्यादा गलत है और इसके बारे में वुमेन को वोकली बोलना चाहिए। इसके बारे में उनको चुप नहीं रहना चाहिए। अपने कोवर्कर्स से, अपने बॉस से इस बात को डिस्कस करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहिए। और अगर if a woman want to improve their standing position in the legal field, in the legal profession, तो उसको अपने स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को इतना ज्यादा बढ़ाना है, इतना ज्यादा बढ़ाना है कि उसको ना, नंबर वन, किसी मेल को देख कर ये ना लगे कि ये मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। नंबर टू, वो किसी को अपना कंपटीशन ना समझते हुए इतना आगे बढ़े, बस अपने आप को पॉलिश अप करती रहे इस लीगल फील्ड में एक्सेल करने के लिए। और नंबर थ्री, अगर आपके वर्क प्लेस में आपको लगता है कि कोई मेल आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ with your seniors, with your family members, or with that person who is harassing you or assaulting you in sexual way or in any way. Because sexual harassment को कभी भी justify नहीं किया जा सकता। और as a student of law मैं ये समझती हूँ कि आपको इतनी awareness तो आ ही जाती है कि what is right and what is wrong. So addressing workplace harassment and assault is a really important thing for all the women who are working in this legal field. और जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, हरेसमेंट को खत्म कर देना चाहिए। और इस खत्म करने के लिए कंपनीज को, लीगल फर्म्स को अपने अंदर हरेसमेंट के जो बाद एक हरेसमेंट हो रही है एक जगह पर, उसके बाद अपने अपने फर्म्स में, अपने ऑफिस में ऐसे लॉज इंप्लीमेंट करने चाहिए, ऐसे सेफ्टी मेजर्स आने चाहिए, ऐसे कोड्स आने चाहिए जिसको देखकर कोई भी इंसान किसी को हरेस करने से पहले सोचे कि अगर हम ये करेंगे तो हमें एंड में क्या कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो इस तरह से वुमेन विल फील सेफ, कंफर्टेबल इन देयर वर्किंग प्लेस, एंड दे विल आल्सो फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट in the place where they are working. That's it for today. I feel really honored to be speaking on this topic about the future of women in LLB. And as a student, I'm still in second year, and I feel really honored and I'm really happy because मैंने अपने डिसीजन खुद ही लिया था। मैंने LLB खुद ही चूज किया है अपने लिए और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जब मैं पढ़ती हूँ अपने सब्जेक्ट्स को, रादर इट इज EU लॉ, रादर इट्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, एडमिन लॉ, टॉर्ट लॉ, मैं बहुत खुशी से पढ़ती हूँ, मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ती हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ मैं अभी इंटर्नशिप भी कर रही हूँ सिटी कोर्ट में, जहाँ मेरी सीनियर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। वो मुझे छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं, जैसे बेल की रिपोर्ट लिखना, जैसे एक लीगल एप्लीकेशन लिखना, जैसे केस फाइल्स को कैसे रीड करना है, केस नंबर्स को कैसे वेबसाइट पे जाके सर्च करना है। तो वो सारी चीजें मैं अभी सीख रही हूँ। मुझे अभी 5 months हुए हैं, तो आई फील रियली प्राउड एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस फील्ड ऑफ माइंड। थैंक यू। Thank you so much, madam, for this your detailed session. Participants, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं तो काइंडली अपना हैंड रेज करें, तो फिर मैं आपको अलो करूंगा क्वेश्चंस के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, यू आर ऑडियोबल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मलिया, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ SCO, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सेशन कंडक्ट किया। और दूसरा कि आपकी फैमिली जैसे कि पहले से ही सोशल वर्क और इन चीज़ों में अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी सारी फेमस है, तो मैं डेफिनेटली आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप जो है इस काम में हमारे साथ कंट्रीब्यूट करती रहिएगा, क्योंकि आप डेफिनेटली इंडिविजुअली भी ये काम करते होंगे। अब मेरा एक आप मतलब क्वेश्चन तो नहीं पर ओपिनियन है कि जैसे आपने कहा कि सारे लोग जो हैं LLB कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी फील्ड है, नो डाउट बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे जो मुल्जिम हो और मुजरिम और जो बेगुनाह हो, सबका जो केस है वो एक वकील ही लड़ता है, ठीक है। तो जब हमारे जो मुजरिम होते हैं वो ताकतवर हों, तो वो डेफिनेटली जो लॉयर्स हैं उनको दबाने की कोशिश भी करते हैं, खरीदने की कोशिश भी करते हैं।
तो मैंने जो सोसाइटी में देखा है, डेफिनेटली सब लॉयर्स या सब बंदे किसी भी फील्ड के एक जैसे नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी लॉयर्स जो हैं वो बिक जाते हैं या फिर वो जो है ना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। तो जो मिडिल क्लास की गर्ल्स हो या लोअर क्लास की, तो आपको क्या लगता है कि वो एलएलबी चूज करने के बाद अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर सकती हैं? आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। एक मिडिल क्लास लड़की हो या फिर किसी भी बैकग्राउंड से आने वाली लड़की हो, अगर वो एलएलबी कर रही है तो मेरा ये सजेशन है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है लिटिगेशन को लेकर, तो वो हमेशा और फील्ड्स चूज कर सकती है, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में कोई आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, कोई क्लाइंट से डील नहीं करना पड़ेगा इस वे में कि आपको कोई गलत केस चूज करना पड़ा है। आप एक ऑफिस में बैठ के एक लीगल काम कर रहे होंगे एक और कंपनी के लिए, तो फिर आपको उस केसेस में इंडल्ज होने की जरूरत ही नहीं है। और नंबर 2, अगर एक लड़की लिटिगेशन की साइड पे जा रही है, उसको कोर्ट्स विजिट करना पड़ेगा, उसको ऐसे ऐसे केसेस लेने पड़ेंगे, तो आई थिंक उसमें रैशनल और इरेशनल डिसीजन की बात आ जाती है। अगर आपके मोरल्स आपको बोल रहे हैं, या आपका कैरेक्टर है जो आपके, या फिर आपकी जो भी आपका जो, तो डोंट गो फॉर दोज केसेस। आपके हाथ में है कि आप कौन से केसेस उठा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं पूछना चाहता था कि आप कहाँ से कर रही हैं लॉ? मैं कर रही हूँ डेनिंग लॉ स्कूल। अच्छा, वैसे आपने वो क्यों चुना, इंटरनेशनल लंदन वाला ही? एफएससी के बाद मेरा ख्याल ये था कि मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी और पाकिस्तानी लॉ करूंगी, जो कि होता है 5 इयर्स का। मेरा ये ख्याल था, बट उसके एलएटी करने के बाद भी मेरा रिजल्ट भी आ चुका था एलएटी का, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स ने कहा कि नहीं, तुम इंटरनेशनल लॉ करो ताकि तुम बाहर जा सको। तो मुझे भी अच्छा लगा फिर, तो मैंने चूज कर लिया। मेरी आवाज आ रही है? यस। जी, आपकी हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, और मैम हमें कितनी मार्क्स उठानी चाहिए ताकि हमें आसानी से मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पासिंग मार्क्स तो एलएटी के होते हैं 50, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप 65 ले लें या 60 अबव ले लें तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू मैम। जी फरहान, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि जो 5 ईयर वाला लॉ है, वैसे तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन उसके फायदे हमें ज्यादा नजर आते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो टाइम उसमें कम लग रहा है, लेकिन 5 ईयर वाले जब आप जाते हैं पाकिस्तानी कोर्ट में, तो जो एक शख्स 3 ईयर वाला करके आता है, जो यूके वाला, वो उसे तो बेसिक चीजों का नहीं पता होता। उसे इवन तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसको, कि उन्हें बेल का नहीं पता होता कि बेल इस केस में मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी अभी वही कर रही हूँ। मेरा 2nd ईयर चल रहा है, मेरा बस एक लास्ट ईयर बच गया है, और अभी मैं इसके साथ साथ सिटी कोर्ट में इंटर्नशिप भी कर रही हूँ। लेकिन जो मेरे सीनियर्स हैं वो मुझे किसी भी केस के पहले वो सारा एक पीडीएफ फॉर्म में भेजते हैं कि इस लॉ को स्टडी करो, और पाकिस्तान पिनल कोड, सीआरपीसी, वो सारे बुक्स मौजूद है लाइब्रेरीज में, तो वो एक दफा हम लोग रीड कर लेते हैं कि ये लॉ में क्या है। रिसेंटली मैंने बहुत सारे लॉज के बारे में पढ़ा इंटर्नशिप में आकर, तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी लॉ को समझना पढ़ना बहुत ईजी है। और किसी पार्टिसिपेंट्स का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच मैडम। आई थिंक पार्टिसिपेंट्स के कोई और क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल सेशन। थैंक यू And फॉर हैविंग hopefully- सर। आगे भी कोई आपके साथ सेशन रखेंगे, कोई डिटेल। थैंक यू फ्रॉम एसईओ। थैंक यू सर। थैंक यू।